Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture I am going to give you 15 correct and incorrect sentences with explanation. So if you are new to the channel, please subscribe it, like and comment your questions, suggestions in the comment section. The first sentence is I have visited Niagara Falls last weekend. Now this is the incorrect sentence. We will correct it, but first let me tell you the rule. Rule is that we don't use any expression that refer back to past time in present perfect tenses. अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ हुआ है। और इसी सेंटेंस में लास्ट वीकेंड जो है वो पास्ट टाइम को रेफ़र कर रहा है, यानी कि इट इज़ रेफरिंग बैक टू द पास्ट टाइम। सो एज पर द रूल, expression that refer back to past time in present perfect tenses are strictly restricted to use. हम यूज़ नहीं करते ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि गुजरे हुए वक्त को रेफ़र करें या गुजरे हुए वक्त को रिप्रेजेंट करें। लास्ट वीकेंड भी एक पास्ट इवेंट है या पास्ट टाइम है। सो द सेंटेंस विल बी करेक्ट इन अ वे, आई विजिटेड नियागारा फॉल्स लास्ट वीकेंड or I have visited Niagara Falls. Either remove last weekend or remove have. Then the correct sentence will be I visited Niagara Falls last weekend if you remove have, and if you remove last weekend then it will be I have visited Niagara Falls. Now coming towards the second, the woman which works here is from Japan. Now let me tell you first rule, then I will explain what is the mistake in the sentence. Rule says we use home, who or whom if there is a living thing before the relative clause. Now in this sentence, which works here is from Japan, is relative clause, and before the relative clause there is a living thing, noun, woman. So when there is a living thing before a relative clause, then we will use who or whom. Among who or whom which will be used for the word woman or which will be used with the word woman will depend upon the noun or the subject. So here we use who, and the correct sentence will be the woman who works here is from Japan. So we will replace which with the word who, and the sentence will be the woman who works here is from Japan. Third sentence is she is married with a dentist. Now this is very interesting example because many of us consider this sentence as a correct one, but there is a most common mistake in it, also very interesting mistake that we usually do in our academics. So what rule says? Rule says when we express in a way that a female marries a man, then we use preposition to. When a male marries to woman, then the word marry takes preposition with. अब ये जो वर्ब मेरी है, मेरी अपने आप के साथ मतलब कि विथ भी लेता है, टू भी लेता है। अब विथ कहाँ यूज़ करना है, टू कहाँ यूज़ करना है, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है या एक इंटरेस्टिंग किस्म की डिस्कशन है, डिबेट है। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर ब्रीफ इंट्रो दूँ तो वो ये हो सकता है कि जो मैरिड है, अगर इसका सब्जेक्ट फीमेल है, यानी कि है इधर जो सब्जेक्ट है इसका फीमेल है शी, तो फिर हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन टू। अगर सब्जेक्ट जो है मैरिड का वो मेल हो, ही हो, असलम हो, कोई भी मेल हो, तो हम यूज़ करेंगे विथ। सो इस सेंटेंस को करेक्ट इससे करेंगे कि शी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट, नॉट विथ अ डेंटिस्ट। अगर शी की जगह कोई मेल होता कि ही इज़ मैरिड टू नतालिया, मतलब कि एक मर्द की शादी हुई है एक औरत से, तो उस सेंस में जो मैरी है यानी कि वर्ब है वो मतलब कि खुद के साथ विथ लेता, प्रीपोजिशन विथ यूज़ करते। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। नाउ द सेंटेंस शी इज़ मैरिड टू अ डेंटिस्ट इज़ करेक्ट। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है वर्ब मेरी का वो फीमेल हो तो प्रीपोजिशन जो वर्ड मेरी है वो लेगा टू। अगर सब्जेक्ट मेल हो वर्ड मेरी का तो प्रीपोजिशन विथ। सो ये था एक कॉमन रूल, इंटरेस्टिंग रूल। चौथा सेंटेंस है आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। नाउ लेट्स लुक व्हाट रूल सेज। According to rule, we don't use infinitive to verbs after modal auxiliary verbs. जो modal auxiliary verbs होते हैं उनके बाद हम
इन्फिनेटिव टू वर्ब्स यूज़ नहीं करते। इन्फिनेटिव टू वर्ब्स आर लाइक टू कॉल, टू रीड, टू शाउट, टू शॉट, to look, to read, to write, to listen. So all these verbs are infinitive verbs. Or a verb preceded by preposition to will be infinitive verb. So अब इस सेंटेंस में I must to call him immediately, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है उसके बाद फ़ौरन एक इन्फिनेटिव वर्ब आ रहा है टू कॉल। सो हम टू को रिमूव करेंगे क्योंकि इन्फिनेटिव्स हम ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद यूज़ नहीं करते। देन द सेंटेंस विल बी आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ऐसे जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वुड हो गया, शुड हो गया, माइट, मे, कैन, कुड, सारों के बाद हम कोई भी एक इन्फिनेटिव टू वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस इज every students like the teacher. Now this is again very interesting sentence. There is a very interesting rule behind this sentence as well. एक बहुत ही अच्छा रूल है इस सेंटेंस के लिए और ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। मोस्ट ऑफ यू मे थिंक दैट इट इज़ राइट और इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, बट इट इज़ नॉट. Why? Because rule says words such as each, every, text, singular noun and singular verb. ये जो वर्ड हैं each और every के बाद हमेशा singular noun आता है और वो singular noun जो है singular noun की वजह से ही वो singular verb इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। तो अगर ये आप सेंटेंस देखें एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, सेंटेंस में अगर आप देखें तो एवरी है, एवरी के बाद जो है वो स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल यूज़ किया गया है। तो ये मिस्टेक है कि हम इस जगह प्लूरल नहीं सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे एंड द सेंटेंस विल बी एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। तो एवरी के बाद जो है स्टूडेंट सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब लाइक्स, फिर बाकी का सेंटेंस सेम। एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर इज़ correct sentence. So rule is on your screen, sentence is on your screen, and you can have great many examples sentences on this structure, on this expression, or on this rule. You can follow this rule as well. Sixth sentence is I enjoyed from the movie. Now according to rule, enjoy don't take any preposition when it is used as a verb and followed by object. अगर enjoy को आप एज अ वर्ब यूज़ करते हैं और वही वर्ब enjoy के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। सो इट विल बी लाइक आई enjoyed द मूवी, यू हैव टू रिमूव द प्रीपोजिशन फ्रॉम आई enjoyed द मूवी। And other examples will be I enjoyed the dinner, I enjoyed the party, I enjoyed your ceremony, I enjoyed the cultural day, I enjoyed all the cultural events. इस हिसाब से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो सेवेंथ सेंटेंस है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई पर्सनली लव दिस रूल। सो एज वी आर डूइंग, we are like looking first at the rule, then we are correcting the sentence. So we'll do same. According to rule, there is a rule that the verb after the expression look forward to must be in ing form. ये जो expression है look forward to, इस look forward to के बाद जो verb आ रहा है उस verb की ing form इस्तेमाल करनी है तो तभी sentence correct होगा। ना ये सेंटेंसेस CSS, PCS और ISSB के बहुत सारे टेस्ट में आते रहते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो लुक फॉरवर्ड के बाद जो प्रीपोजिशन वर्ब मीट था उसकी इंग फॉर्म यूज़ कर दी आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये सही होते है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ये एक्सप्रेशन लुक फॉरवर्ड टू आता है, उसके बाद जो वर्ब है उसकी इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इसका कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू कॉलिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग टुगेदर विथ यू एंड यू कैन हैव मेनी मोर एग्जांपल्स। नाइन्थ सेंटेंस इज शी कैन टू ड्राइव। ये वही सेंटेंस है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल कहता है कि वी डोंट यूज़ इन्फिनेटिव वर्ब्स आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वैसा ही सेंटेंस है जैसा हमने प्रीवियसली डिस्कस किया जो था शी मस्ट
to call him immediately. तो वहाँ must के बाद infinitive to आ रहा था, यहाँ भी can के बाद infinitive to verb आ रहा है. And similarly you have to follow the same rule. You have to omit infinitive to in order to correct the sentence. अगर infinitive to हम काटेंगे या फिर हम इसको रिमूव करेंगे तो सेंटेंस होगा she can drive, which will be correct form of the sentence. Okay, right. 10th sentence is where I can find a bank. People think that this, along with all those sentences having same structure like this, are correct forms, are correct sentences. But what rule says is prior to us. According to rule, auxiliary or modal auxiliary verbs are used before the subject in interrogative sentences regardless of the words where, what, who, etc. अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम या तो ऑक्सिलरी वर्ब को या तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेयर वाट हु. अब ये वेयर वाट हु आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि अब जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद रखें, यानी कि इस स्ट्रक्चर में वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक. बट इनके होने या ना होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम किसी भी सूरत में इनको सब्जेक्ट के पहले ही रखेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस होगा वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक. सो अब अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो जो वेयर है, वेयर के बाद भी हमने कैन रख दिया जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट आ गया. सो इस सिचुएशन में जितने भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही लेते हैं, भले ही वर्ड वेयर वाट या हु इस्तेमाल किए गए हों. उसके बाद जो 11वां सेंटेंस है वो है आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये एक ऐसा जुमला है जिसको हम एक सिंपल रूल के तहत करेक्ट कर सकते हैं. रूल कहता है विथ एब्रीविएशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट्स वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल. जो एब्रीविएशंस होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर स्टेट्स, उनके साथ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. अब यह यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि एक स्टेट है या स्टेट्स हैं, या एब्रीविएशंस जैसे यूएनओ हो गया या फिर WHO, हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को या फिर यूनिसेफ, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनको आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फॉर्मल इंग्लिश में आप उनसे पहले यानी कि उनके पहले आप आर्टिकल द यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे. तो इस सेंटेंस को भी ऐसे ही करेक्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके पहले यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के पहले आर्टिकल द रखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये करेक्ट सेंटेंस है, सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म है आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं कि आई एम गोइंग टू द यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम. द WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फाउंड न्यू कोविड वेरिएंट. तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं स्टेट्स के, ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसके पहले यानी कि जिससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट द सेंटेंस. 12th sentence is I have been here since 3 months. Now, it is based upon the rule of since and for, the use of since and for. So, let me tell you the rule. For means from the beginning of the period to the end of the period. Since plus point. A point is a precise moment in time, like 9 o'clock, 1st January, Monday. Since means from a point in the past until now. अगर कोई भी इवेंट पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में चल रहा है यूज़ करेंगे सिंस. अगर कोई भी इवेंट पास्ट में चला हो और पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो यूज़ करेंगे फार. पर कंडीशन ये है कि जो टेंस हो, टेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही हो. सो इसको हम करेक्ट ऐसे करेंगे आई हैव बीन हेयर फॉर 3 months. क्योंकि हमें पार्टिकुलर टाइम का पता नहीं कि कौन से 3 महीने, अगर हमें टाइम का पता नहीं होता तो हम यूज़ करते हैं फार. सो इन दिस सिचुएशन इधर भी हम फार इस्तेमाल करेंगे ना कि सिंस. और जुमला करेक्ट ऐसे होगा आई हैव बीन हेयर फॉर 3 months. 13th सेंटेंस इज शी डजंट लिसन मी. व्हाट रूल सेज इज प्रायर टू अस.
Rule says that the verb listen must have a preposition to if it precedes noun or pronoun. अगर ये जो verb listen है ये किसी भी noun या फिर किसी भी pronoun को precede कर रहा है या उसको हम noun या pronoun से पहले यूज़ करते हैं as a main verb, तो फिर हम listen के साथ preposition to इस्तेमाल करेंगे. The correct sentence will be she doesn't listen to me. She doesn't listen to me. हमने किया क्या, हमने preposition to डाल दी listen के साथ. So जुमला correct हो गया, she doesn't listen to me. So this is simple rule, very sophisticated yet interesting. 14th sentence is you speak English good. Now again many may consider it a correct sentence, but there is an error. We'll find it using the rule. Rule says the word good is not possible in predicative position. Predicative position means auxiliary verb के बाद आना, यानी कि वो predicative position होती है adjective की, या फिर इस ये जो good है good की यहाँ पे predicative position है. So we use well because this is only used in predicative position and have meaning सेम एज गुड. अब ये जो वर्ड गुड है एडजेक्टिव है और इसको हम अगर प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा. अगर हम इसको प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस को सही से सेंस या फिर मीनिंग नहीं मिलेगी. सो प्रेडिकेटिव पोजीशन में इसकी जगह हम वर्ल यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्ल एक तो प्रेडिकेटिव पोजीशन में आता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन में नहीं आता, और दूसरा तो वर्ल की मीनिंग गुड जैसी ही है. तो गुड एंड वर्ल आर सिनोनिम टू ईच अदर एंड बट गुड इज़ यूज्ड इन एट्रीब्यूटिव पोजीशन, वर्ल इज़ यूज्ड इन प्रेडिकेटिव पोजीशन. एट्रीब्यूटिव पोजीशन ये होती है कि भाई आप एडजेक्टिव के पहले यूज़ करें उसको, और प्रेडिकेटिव पोजीशन ये होती है कि सेंटेंस में जो एक प्रेडिकेट होता है एक सब्जेक्ट होता है और उसको आप प्रेडिकेटिव वाली ही यानी कि कंपोनेंट में रखें तो उसको हम प्रेडिकेटिव पोजीशन कहते हैं. यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो कनेक्टिंग वर्ब्स होते हैं या फिर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम रखें एडजेक्टिव को तो वो प्रेडिकेटिव पोजीशन होती है. प्रेडिकेटिव कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि प्रेडिकेटिव फॉर्म में ही आते हैं, वो हैं वेल, अफ्रेड, एब्रोड, और ऐसे एडजेक्टिव जो कि ए से शुरू होते हैं जैसे एब्रोड, अलोन, अफ्लोट. ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में आते हैं. 15th sentence is the police is coming. According to the rule, the word police is commonly used as a plural noun and thus takes singular verb. Not singular but plural verb. Singular verb भी यूज़ करते हैं इसके साथ जब आप एक पुलिस वाले बंदे को रेफ़र करें, बट उसके लिए एक अलग सा वर्ड है पुलिसमैन. तो पुलिस जो है यानी कि इसको हम पुलिस कहते हैं, पुलिस इसकी प्रोनाउंसिएशन है. इसको प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाता है, थस इट टेक्स प्लूरल वर्ब. तो सेंटेंस करेक्ट होगा द पुलिस आर कमिंग. द पुलिस आर कमिंग. सो ये थे 15 सेंटेंसेस जिनको हमने करेक्ट भी किया और उनको हमने एक्सप्लेन भी किया कि वो क्यों इनकरेक्ट हैं या फिर उनमें कौन सी मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को भी हमने एक्सप्लेन किया. उसके साथ साथ मैंने और भी एग्जांपल्स आपको ज़बानी बता दिए. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी एंड आई एक्सपेक्ट कि आप प्लेलिस्ट विज़िट करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं. आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स, चैनल के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.